So beta, as you know, we are doing chapter number 10, haloalkanes and haloarenes. And in this particular chapter, we are doing the chemical properties of haloarenes. And in the last lecture, we discussed about the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions. And in that case, we studied about the causes of less reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions. कहने का मतलब ये है कि जो haloarenes होते हैं they generally do not undergo nucleophilic substitution reactions. इनमें nucleophilic substitution reactions नहीं होती. Lactophilic substitution easily takes place कर जाती है, but nucleophilic substitution reaction does not takes place easily. और उसके causes हम लोगों ने last lecture में discuss किए थे. Resonance is one of the most important causes. इसके अलावा polarity, hybridization, etc., etc. But certain nucleophilic substitution reactions can be carried out in case of haloarenes under drastic conditions. That is under the conditions of high temperature, pressure. ठीक है? Some of the compounds of haloarenes can be obtained. Organic compounds from haloarenes can be obtained by nucleophilic substitution reactions. So these are the very first one. The reactivity, that is formation of phenol from chlorobenzene. तो इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह से रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरेन्स, और इसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो जनरली अंडर नॉर्मल कंडीशंस दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस because of resonance stabilization effect, polarity of bonds, hybridization, etc., etc. But under applying on drastic conditions like high temperature, pressure conditions, some of the substitutions are possible, like substitution by hydroxyl group or replacement by hydroxyl group. Replacement by OH group. In this case, the given haloarene like chlorobenzene is made to react with 6 to 8% alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide under the temperature conditions of 623 Kelvin temperature conditions and 300 atmosphere pressure conditions. The formation of phenol takes place, as you can write the chemical equation. This is chlorobenzene. When it's treated with aqueous alkali 6 to 8%, the very first thing, the formation of sodium phenoxide takes place under the conditions 623 Kelvin temperature, 300 atmosphere pressure. Removal of water, H2O, and NaCl takes place. Formation of sodium phenoxide takes place. Sodium phenoxide. Okay beta, this sodium phenoxide on dilution with HCl ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना वहां पे इसको हम ट्रीट करवाते हैं विद डाइल्यूट HCl. यहां से आपके पास NaCl रिमूव हो जाता है और फिनोल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाती है.
This is how substitution of hydroxyl group takes place in case of haloarenes. Okay बेटा, और ये जो रिएक्शन है, this is used for manufacturation of phenol under the name Dawes process. Dawes process for manufacture of phenol. Okay, इस चीज को अच्छी तरह से आपने नोट कर लेना है, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल बाय Dawes प्रोसेस. द नेक्स्ट रिएक्शंस जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, जैसे नाइट्रो ग्रुप वगैरह, अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है, जैसे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो उस केस में सॉरी तो उस केस में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो इजी हो जाती है. ठीक है, लाइक दिस, जैसे मान लीजिए पैरा पोजीशन के ऊपर है, ये आपके पास अगर कंपाउंड है, दिस इज, ठीक है जी, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन. तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करना चाहें, सब्स्टिट्यूशन करना चाहें, तो यहाँ पे हमें एक्वस एल्कली की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सॉरी, प्रेशर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कंडीशंस एंड प्रेशर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को टेक्स प्लेस करवा सकते हैं 15% एल्कली. ठीक है, 15% एल्कली की प्रेजेंस में, एंड ओनली 443 केल्विन टेम्परेचर. ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और फॉलोड बाय द सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी. फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, सेकंड स्टेप में आपके पास डाइल्यूट HCl ऐड कर दोगे, जिस तरह से पहले किया. पहले फिनोक्साइड बनेगा, उसके बाद फिर फिनोल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी. इस तरह से. ओके, दिस इज हाउ द रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक्स प्लेस. सिमिलरली अगर ऑर्थो पैरा पोजिशंस के ऊपर, दोनों के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा, मतलब 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो रिएक्शन और इजी हो जाएगी यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा है, 2 ग्रुप लगे हुए हैं. दिस इज योर 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ठीक है, ये 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन थी, अब यहाँ पे 2,4 आ गया. टू फोर डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. तो अब कंडीशन और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी. नाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन एक्वस एल्कली. एक्वस एल्कली की प्रेजेंस में. ठीक है, 368 केल्विन टेम्परेचर एंड डाइल्यूट HCl इन द सेकेंड स्टेप. आपके पास OH है यहाँ पे, NO2 ग्रुप. 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी यहाँ से. ठीक है जी. और इन केस अगर 3 लग जाते हैं, अगर 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तीनों पोजीशंस के ऊपर, यहाँ पे भी लग जाता है एक, 2, 4, 6. ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लेते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. इसको पिक्राइल क्लोराइड बोलते हैं, पिक्राइल क्लोराइड. तो इसकी भी कंडीशन जरूरत नहीं होती.
तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाता है, जस्ट वाटर मीडियम में सिंपल एक्वस मीडियम, मतलब सिंपल एक्वस कंडीशंस में हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं 323 केल्विन के ऊपर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो किस तरह से इफेक्ट डालता है ऑन द ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हैलोअरेन्स। इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, नाइट्रो ग्रुप एक्चुअली आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड की जो क्लीवेज होती है उसको ईजी बनाता है, रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन ईजी टेक्स प्लेस हो जाती है एंड अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है, greatly affect the nucleophilic substitution reaction in case of haloarenes and the ease of reactions, the ease of nucleophilic substitution reactions in case of haloarenes goes on increasing in the presence of electron withdrawing groups at ortho and para positions, because these groups withdraw the electron charge density from the ring। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं और एक तरह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड को वीकन कर देते हैं, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इजीली टेक्स प्लेस हो जाता है। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और यहाँ पे बेटा आप लोगों ने मैकेनिज्म में ऑर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है जब आप एक्सप्लेन करोगे इसको। इफेक्ट एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है, मेटा पोजीशन के कोई इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर जब हम रेजोनेंस देखते हैं हैलोरेन्स के केस में क्लोरोबेंजीन वगैरह की जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि मेटा पोजीशन जो रहती है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहती, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे देन दे कैन लार्जली इफेक्ट द रिएक्टिविटी, अदरवाइज एट मेटा पोजीशन दे कांट इन्फ्लुएंस ऑन द reactivity of halogens towards nucleophilic substitution reactions. So this is about nucleophilic substitution reactions in case of halogens. यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन जरूर दे देनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग +1 स्टैंडर्ड में और अभी भी थोड़े दिन पहले भी पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे अब इन ग्रुप्स के साथ ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ कर लेनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो इजीली ड्रॉ हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ the second type of reactions that halogens can undergo easily, they are electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions, अब क्योंकि आप लोगों ने रेजोनेंस में अभी डिस्कस कर रहे हैं, रेजोनेंस के केस में आपने देखा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहती है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ हैलोजेंस मैक्सिमम रहती है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस टेक्स प्लेस इजीली, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेलोजिनेशन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में सबसे पहले हेलोजिनेशन आती है। हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शंस को टेक्स प्लेस करवाते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन है आपके पास,
दिस इज क्लोरोबेंजीन। हम इसकी हेलोजिनेशन करेंगे लाइक क्लोरीनेशन वगैरह कुछ भी, बट ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 की केस में ये एज अ लुईस एसिड एक्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करती है। ये जो ये होता है एनहाइड्रस FeCl3 या मतलब लुईस एसिड्स जो होते हैं, और यहाँ से आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। दिस इज ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन जाता है। दिस इज माइनर, या 1,2 डाइक्लोरो या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। यह माइनर होता है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे इस तरह से ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। ऑर्थोक्लोरो में हैवी ग्रुप साइड बाय साइड आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, जैसे इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस वगैरह टेक्स प्लेस कर जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और ये माइनर बनता है। जबकि वहाँ पे वो सिमेट्रिकल रहता है, बिकॉज ऑफ विच नो स्टेरिक फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, हेंस मेजर प्रोडक्ट इज पैरा डाइक्लोरो। ओके, इसी तरह से नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है जी। सेकंड इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। सेकंड इज नाइट्रेशन। हम के यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। HNO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और यहाँ से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इजीली टेक्स प्लेस कर जाती है। हीट करते हैं और हमारे पास सेम ऑर्थोनाइट्रो, ठीक है, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड इसके बाद यहाँ पे आपके पास पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन टेक्स प्लेस होती है नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिस वन। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद रखना बेटा इसको। नेक्स्ट इसी तरह से सल्फोनेशन आ जाती है। सल्फोनेशन में क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रेजेंस करते हैं यहाँ पे। थर्ड इज योर सल्फोनेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन टेक्स प्लेस करवाते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, हीट करेंगे सिंपली इसको, और हमारे पास ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो बन जाएंगे। SO3H SO3H बनेंगे वही जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल ऑलवेज बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमेशा, चाहे कोई सी भी रिएक्शन हम पार्टिसिपेट टेक्स प्लेस करवा रहे हैं। क्लियर। द नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये हम +1 में भी करके आए हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पे फर्क सिर्फ क्या है कि हम हेलो अरेन्स के केस में कर रहे हैं।
फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, दो होती है, एक अल्काइलेशन होती है, एक असाइलेशन होती है। अल्काइलेशन में हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लुईस एसिड, और एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड वगैरह, एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो पहले अल्काइलेशन लिख लेते हैं। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसको आपने गिवन अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाया। ठीक है जी, मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड कोई भी ले सकते हो। यहाँ से आपके पास किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस लुईस एसिड लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह की जो फ्रिडल-क्राफ्ट होती है स्पेशली किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे, हीट करेंगे, आपके पास वही ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे, ऑर्थोक्लोरोटोल्बिन एंड पैराक्लोरोटोल्बिन। प्लस दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोल्बिन, ठीक है, माइनर, दिस इज मेजर। ऑर्थोक्लोरोटोल्बिन एंड पैराक्लोरोटोल्बिन, दिस वन। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, स्टडी करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट। दिस इज अल्काइलेशन, ये कौन सी है, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल हैलाइड के साथ अल्काइलेशन। नाउ सेकंड इज असाइलेशन। असाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द कंडीशन सेम रहेंगी। ये दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, और यहां पे क्या बनेगा, एस्टोफिनोन। ठीक है जी, COCH3 COCH3, orthochloroacetophenone and parachloroacetophenone. This is minor, this is will be major. ये है आपके पास। This is how Friedel-Crafts reactions takes place, and this is all about the electrophilic substitution reactions in case of halogens. And the last one जो है यहाँ पे हेलोरेंस के केस में वो मिसलेनियस रिएक्शंस आ जाती हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले वर्ट्स-फिटिज रिएक्शन है, वर्ट्स-फिटिज रिएक्शन। वर्ट्स-फिटिज रिएक्शन एक्चुअल में दो रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनी है। एक वर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स, जब हम 2 अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करते हैं विद एक्टिव सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमारे पास हायर एल्केन्स बनते हैं, वर्ट्स रिएक्शन। और एक थी फिटिज रिएक्शन। फिटिज रिएक्शन में क्या होता है, 2 अराइल हैलाइड्स को एक्टिव सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके पास बाइफिनाइल बनता है, बाइफिनाइल, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। तो वर्ट्स फिटिज क्या है, हाफ पार्ट वर्ट्स का और हाफ पार्ट फिटिज का, मीन्स टू से एक अराइल हैलाइड और दूसरा अल्काइल हैलाइड। 1 अराइल हैलाइड एंड सेकंड इज अल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद एक्टिव सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन टेक्स प्लेस लाइक दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, वर्ट्स फिटिज रिएक्शन, वर्ट्स फिटिज रिएक्शन। वर्ट्स फिटिज रिएक्शन क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, आपका ये अराइल हैलाइड ले लिया पहले, क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसको ट्रीट करवाएंगे विद अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव सोडियम, इस तरह से
ये अराइल हैलाइड आ गया, ये आपका अल्काइल हैलाइड हो गया। सोडियम के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हीट करेंगे और क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। CH2CH3, ये दिस इज इथाइल बेंजीन फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो गया। ये जो बाहर हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, इस तरह से ये वाली चीज, ये रिमूव आउट हो गया, वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी, इथाइल बेंजीन बन गया। दिस इज वर्ड्स फिटीज रिएक्शन। इसी तरह से एक होती है अल्मेन बायराइल सिंथेसिस। अल्मेन बायराइल सिंथेसिस फिटीज रिएक्शन की तरह है। फिटीज रिएक्शन जैसे, फिटीज रिएक्शन में यहाँ पे भी यही लेंगे सेम, अराइल हैलाइड और बाइफिनाइल बन जाएगा, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे इसकी जगह पे भी बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी जब आप यहाँ पे बेंजीन रिंग लोगे, बाकी सेम ही रहता है। अल्मेन रिएक्शन में क्या करते हैं, सेम होता है लेकिन सोडियम की जगह पे हम कॉपर लेते हैं। अल्मेन बायराइल सिंथेसिस में अल्मेन रिएक्शन बोलते हैं इसको सिंपली हम लोग। अल्मेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, आइडोबेंजीन लेते हैं, आइडोबेंजीन लेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कॉपर। इस तरह से, ठीक। सील्ड ट्यूब में हीटिंग करते हैं, ड्राई ईथर वगैरह नहीं लेते यहाँ पे, सील्ड ट्यूब होती है ये, ठीक है। हीट करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल फॉर्मेशन हो जाएगी। डाइफिनाइल, इस तरह से आपके पास ये +2 CuI बाहर हो जाता है। दिस इज अल्मेन रिएक्शन, अल्मेन बायराइल सिंथेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिस तरह से वहाँ पे ग्रिग्नर रिएजेंट बने थे, यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। लिथियम के साथ करेंगे फिनाइल लिथियम बन जाएगा, ठीक है। सिंपल रिडक्शन करेंगे तो बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगी। रिडक्शन सिंपल सोडियम निकल एल्यूमिनियम अलॉय की प्रेजेंस में या इथेनॉलिक मीडियम में हम रिडक्शन करेंगे तो आपके पास बेंजीन जो है वो फॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको, इन रिएक्शंस को डिस्कस करते थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हैलोरेन्स, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिडक्शन करनी है, ठीक। नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, ये कहाँ से प्रोड्यूस होने हैं, निकल एल्यूमिनियम अलॉय ले सकते हो, अल्कोहलिक मीडियम इथेनॉलिक कंडीशंस में, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप एल्कली की प्रेजेंस में आप कर सकते हो, एल्कली की प्रेजेंस में एक्वस एल्कली हीट करेंगे, आपके पास बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरेन्स एंड हैलोएल्केन्स। इनको आपने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेना है थॉरोली, ठीक है जी। बाकी फिर थोड़ा सा टॉपिक बचा इसका, कुछ स्टेटमेंट्स टाइप, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज होल द टॉपिक थॉरोली, ओके।